Dear students, previously we have discussed about the alimentary canal. We said that the digestive system consists of alimentary canal and associated glands. The alimentary canal is a complete one with two openings, that is mouth, and the last opening, that is the anus. मतलब दो openings होते हैं because it is a complete digestive tract. अब यहाँ पे माउथ में हमने डिस्कस किया था दैट माउथ लीड्स इनटू द बकल कैविटी एंड दिस बकल कैविटी विल बी हैविंग प्रेजेंस ऑफ टीथ, प्रेजेंस ऑफ टंग एंड द प्रेजेंस ऑफ द पैलेट. वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटेशन, जिसमें हमने थिकोडोंट क्या है वो पढ़ा था, what is diaphyodont, and the third thing that is what is heterodont. Presence of different types of teeth is known as heterodont. The another important thing we discussed was the dental formula, which was 2123 upon 2123. It was the number of teeth present in the half of each upper and lower jaw. It was known as dental formula. In the structure of teeth, we studied that the outermost region is known as enamel and it is enclosed. That is, below it is the layer of the dentine. And dentine encloses the cavity known as the pulp cavity, which contains several blood vessels. So our teeth are embedded into the sockets, and this arrangement was known as the thecodont type of arrangement or thecodont type of dentition. Other than that, we discussed that tongue, a muscular structure, will be having large number of projections called papillae, and some of this papillae will be having the taste buds. The tongue is attached to the floor of buccal cavity by a flap-like structure in between called frenula, and this opens into the small passage which is the pharynx, and this pharynx will be leading to two openings. One on the anterior side will be the trachea, and the one on the posterior side will be the esophagus. So pharynx opens into trachea and pharynx opens into esophagus. The opening of trachea was called glottis and it was guarded by epiglottis, whereas the esophagus will be the food pipe which will carry the food and it will open into the stomach. So next structure that we need to discuss is about the structure of stomach. So esophagus leads to the stomach, which is a J-shaped bag-like structure. हमने आगे डिस्कस किया है दैट ये जो इसोफेगस होता है वो एक ट्यूबुलर पैसेज है, और ये ट्यूबुलर पैसेज जो है इसोफेगस, इट विल रन डाउन थ्रू योर नेक between the thoracic region, that is crosses the thorax, crosses the part of diaphragm. Diaphragm को cross करके it will open into the J-shaped structure which is called as stomach. So stomach is a pouch-like, a bag-like structure, and it can accommodate about 2 liters of food and water. 2 liters of food and water can be accommodated in our stomach. So it is situated on the left side of abdominal cavity. मतलब abdominal cavity में just हमारे diaphragm के नीचे on the left side there is presence of the stomach. क्योंकि right side पे क्या होता है, right side पे liver present होता है, which is one of the largest gland of our body. Okay, so stomach is present on which side? On the left side, just beneath your diaphragm. So this stomach that will be divided into parts. The stomach consists of regions, that is cardiac, fundus and pyloric. जो स्टमक होता है उसके 3 रीजन्स होते हैं, राइट? स्टमक जो है इट इज डिवाइडेड, एक्चुअली इंटरनली वो डिवाइडेड नहीं है, इंटरनली इट इज वन सिंगल स्ट्रक्चर,
बट हम उसे स्टडी करने के पर्पज से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 पार्ट्स के नाम क्या है? कार्डियक पोर्शन, फंडस पोर्शन एंड द पाइलोरिक पोर्शन। सो स्टमक is going to be a structure like this, right? So this first structure, this bulging structure at the top is known as the fundus part. What it is called? Fundic part. This region, main region, is the cardiac part of the stomach, and this lower region is known as the pyloric stomach. So here there is presence of a valve or a sphincter. And what is this valve known as? Yesterday we have written its name. It is known as cardiac sphincter. क्या कहते हैं? Cardiac sphincter. मतलब यहाँ पे हमने जो स्टमक का डायग्राम बनाया है उससे हम क्या कहना चाहते हैं? That the stomach is divided into 3 parts. These 3 parts are, the topmost region is called fundus. The main part where the food will enter is the cardiac part, and the lower terminal part is called the pyloric part of the stomach. So the entry of food in the stomach is guarded by cardiac sphincter, which is also known as gastroesophageal sphincter. Another name for कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है? कार्डियक स्फिंक्टर कह सकते हैं या तो फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये जो स्टमक होता है उसके वॉल्स में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, और जैसे जैसे उसमें फूड एक्यूमुलेट होने लगता है वैसे वे फोल्ड्स रिड्यूस होते हैं। अगेन आफ्टर व्हेन द फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन, दिस फोल्ड्स विल अगेन कम बैक, मींस अगेन द स्टमक कैन गेट कॉम्पैक्ट। तो स्टमक जो है उसकी वॉल थोड़ी डिस्टेंसिबल होती है, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबल टाइप की वॉल होती है, जिससे डिस्टेंसिबल वॉल ऐसा कहा जाता है। सो दैट वाज अबाउट द स्टमक। और एक चीज, ये जो फंडस होता है इट विल बी स्टोरिंग द गैसेस, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी एंटर हो रहा है और जो कुछ भी डाइजेस्ट हो रहा है उसमें से जो गैसेस रिलीज होते हैं वो यहाँ पे आके फंडस रीजन में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, the stomach leads to the small intestine. स्टमक के बाद अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टमक में डाइजेशन होने के बाद अब वो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। सो हियर इट इज guarded by, the name of the sphincter over here is pyloric sphincter. क्या कहा जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर मतलब ये जो फूड है दैट इज डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड इन स्टमक, पर उसके बाद फूड कहाँ पे एंटर होगा? इंटेस्टाइन में, और वो भी कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। So there is a sphincter between that also, a valve between the stomach and the small intestine, और इसे क्या कहा जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। मतलब स्टमक में एंटर होने के वक्त है कार्डियक स्फिंक्टर, और स्टमक से एग्जिस्ट होने के वक्त है द नेक्स्ट स्फिंक्टर विच इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन, the small intestine is divided into, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज a U-shaped duodenum. The first part is called duodenum. तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? डिओडेनम है। डिओडेनम के आगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड
हाईली कॉइल्ड पार्ट विच इज द इलियम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट्स हो गए। डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द इलियम। इलियम सबसे ज्यादा कॉइल्ड रीजन होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की अकेले की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ इज 6 meters long. Okay, so the word is small but actually it is extensively coiled structure. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेजर काम होता है, सारा ही फूड मेजरली डाइजेस्ट होता है और सारा ही फूड मेजरली अब्सॉर्ब होता है। ये दोनों ही चीजें कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of the whole digestive tract. Now small intestine opens into the large intestine. So next will be large intestine. Here the sphincter between ileum and the cecum, मतलब the first part of the and the large intestine is known as इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व या इलियोकोलिक वाल्व कहा जाता है इसे। क्या है ये कि इलियम है, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन दोनों के बीच में भी एक वाल्व है और उसे कहा जाता है इलियोसिकल वाल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट? प्रेजेंट बिटवीन द इलियम and the large intestine. I hope you are able to understand this. Now, next जो है वो large intestine, it consists of, इसके भी 3 parts हैं। तो पहला है cecum, second is colon and the third one is called rectum. So the large intestine is divided into 3 parts: cecum, colon and रेक्टम। सबसे पहला जो सेकम है इट इज, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है तो लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेकम एंड देन देयर इज अ कोलॉन एंड इट टर्मिनेट्स इनटू द एनस, मतलब लास्ट पोर्शन है रेक्टम। तो इस रीजन को कहा जाता है सेकम। ये जो सेकम है, the cecum will be having presence of symbiotic bacteria. क्या होता है सेकम में? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं एंड दे आर अ मेजर सोर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ द विटामिन। तो सेकम जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अनदर थिंग इज दैट फ्रॉम दिस सेकम देयर इज अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, a small finger like projection that emerges on the side of the cecum and this is known as vermiform appendix. उसे कहा जाता है vermiform appendix. It is a small finger like projection which is present on the side of the cecum. Okay, तो vermiform appendix जो होता है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले जो हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल होता है, पर हम में एज वी डिपेंड ओनली अपॉन द कुक्ड फूड एंड वी डू नॉट ईट द ड्राई सेल्यूलोज ड्यू टू विच द यूज ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैज बीन रिड्यूस। इसलिए हमारे पास क्या है? सिर्फ वेस्टिजियल फॉर्म में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट है। बट इन द केस ऑफ इफ देयर इज सम पेन और देयर इज सम फूड एक्यूमुलेशन और डीकेइंग इन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देन द ऑपरेशन हैज टू बी डन एंड इट हैज टू बी रिमूव्ड। फिर ये जो पैसेज पूरा दिख रहा है इसे कहा जाता है कोलॉन। कोलॉन जो होता है वो 3 तरह का, मतलब असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग। जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे असेंडिंग कोलॉन कहा जाता है, इसे ट्रांसवर्स कोलॉन और इसे डिसेंडिंग कोलॉन। एंड कोलॉन एंड्स इनटू द लास्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द रेक्टम। और रेक्टम जो होता है उसमें फीकल मैटर स्टोर होके रहता है, मतलब जब तक उसे एक्सक्रीट ना किया जाए, उसे रिमूव ना किया जाए, तब तक रेक्टम जो होता है वो अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज है जिसमें फीकल मैटर जो है वो स्टोर हो जाता है एंड थ्रू द एनस द वेस्ट इज बीइंग एलिमिनेटेड। द रिमूवल ऑफ द डाइजेस्टिव वेस्ट
is known as defecation. The removal of digestive waste is known as defecation. So this was all about the alimentary canal beginning from mouth to anus. Next we will talk about the histology of the alimentary canal.